Hello students, today we are going to start Unit 1.4 Competition in various sports at national and international level, and 1.5 is Khelo India program. Now let's see what type of competition in national and international. Okay, let's see. Competition in various sports, national and international level. India is home to a diverse population playing many different sports. Field hockey is the most successful sport for India at Olympics, in which India has won 8 Olympic gold medals. Cricket is most popular sports in India. Kabaddi is most popular indigenous sports in the country. Other popular sports in India are athletics, badminton, judo, football, basketball, chess, shooting, wrestling, boxing, tennis, squash, weightlifting, gymnastics, and table tennis. Some indigenous sports like Kho-Kho and Kabaddi are very popular. Some other sports originated in India such as chess, leg cricket, snooker. They are indigenous sports were originated in India. बेसिकली क्या है कि जब हमारा फर्स्ट पार्टिसिपेशन जो ओलंपिक्स में हुआ था वो हॉकी का हुआ था और 8 गोल्ड मेडल इंडिया लेके आई थी इन हॉकी. ठीक है, बाकी और भी बहुत सारे पॉपुलर गेम हैं और उसके बाद एथलेटिक्स में भी हमारे मेडल आए हैं, शूटिंग में भी आए हैं. तो कंपटीशन में ओलंपिक्स में पार्टिसिपेशन इंडिया का रहता है और उसके अंदर हमारी प्लेसेस आती रहती हैं. द नेशनल गेम ऑफ इंडिया इज द नेशनल डोमेस्टिक स्पोर्ट्स इवेंट ऑर्गेनाइजेशन विच हैज बीन हेल्ड इन द कंट्री सिंस 1924 and for developing multi-sports culture in India. Khelo India School Games, an event for under 17 school kids, had been started from 2018 as its first edition. Basically 2018 में एक अंडर 17 प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था जिसका नाम था खेलो इंडिया प्रोग्राम. बेसिकली अंदर क्या था, ग्रास रूट लेवल से बच्चों को सर्च करके उन्हें तैयार करके इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेशन कराने का मेन मोटिव था कि जो ग्रास रूट लेवल के बच्चे हैं वो मैक्सिमम पार्टिसिपेशन कर सकें और जो टैलेंट है वो सामने आ सके. इसीलिए खेलो इंडिया प्रोग्राम अंडर 17 बात करता है 2018 में. पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर स्पोर्ट्स इन इंडिया इज with the Ministry of Youth Affairs and Sports. The only major is the BCCI, which is the administrative body of cricket, but not a NSF. Presently, there are more than 70 recognized national sports federation. Sports Authority of India, the first arm of the ministry, supports and nurtures talent in youth and provides them with request infrastructure, equipments, coaching facility and competition exposure. Sir Doravji Tata, with the support of Dr. A.G. Naron, established the Indian Olympic Association, means IOA, in 1927. IOA is the responsible for the Indian continent's participation in the Olympic Games, Commonwealth Games, Asian Games and South Asian Federation Games. Each Olympics and non-Olympics sports has a federation at the national level. Now let's see the major responsibility of national federation. First one is to select the national team. Basically federation का मेन रोल यही होता है कि वो नेशनल की टीम को सिलेक्ट करे और सिलेक्ट करने के बाद उनका पार्टिसिपेशन कराए, क्योंकि जब तक सिलेक्शन नहीं होगा नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे प्लेस नहीं आएगी. ठीक है. सेकंड पॉइंट इज टू रिकमेंड द इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन फॉर ऑफिशियल स्पॉन्सरशिप. मीन्स के जितने भी हमारे
ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, या स्पॉन्सर्स हैं, तो वो मोटिवेट करना, बूस्टअप करना कि वो आईओए के थ्रू आईओसी में भी पार्टिसिपेट कर सकें। नेक्स्ट पॉइंट इज टू सुपरवाइज द कंडक्ट ऑफ स्टेट एसोसिएशन अंडर दैम, मीन्स के जितनी भी हमारी एसोसिएशन है उन्हें कंट्रोल करना और उन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहना। नेक्स्ट पॉइंट इज टू एंश्योर कोऑर्डिनेशन अमंग स्टेट स्पोर्ट्स, मीन्स के जितनी भी स्टेट्स हैं इंडिया में उनके जो स्पोर्ट्स हैं उन्हें उन कंट्रोल में रखना और जितने भी कंपटीशन है उन्हें टाइम टू टाइम चेक करते रहना कि कंपटीशन हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज टू प्रिपेयर बजट फॉर रेस्पेक्ट स्पोर्ट्स, मीन्स के हर स्पोर्ट्स को प्रॉपर बजट मिलना चाहिए जितने भी स्पोर्ट्स हैं, क्योंकि अगर बजट नहीं मिलेगा तो स्पोर्ट्समैन को फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होंगी। लास्ट पॉइंट इज टू रिकमेंड द नेम्स फॉर अवार्ड लाइक राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड एंड द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन स्पोर्ट्स है। उसके लिए नेम डिसाइड करना, प्लेस डिसाइड करना, कोचेज डिसाइड करना कि कौन कौन नॉमिनी है, ठीक है, और किन्होंने बेस्ट रिजल्ट या बेस्ट प्लेयर दिए हैं। यही बेसिकली मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो नेशनल फेडरेशन को फॉलो करनी होती है। Our next topic is Khelo India program. The importance of sports and fitness is one's life invaluable. Playing sports inculcates team spirit, develop strategic and analytical thinking, leadership skills, goal settings, and risk taking. A fit and healthy individual leads to an equally healthy society and strong nation. मीन्स के जितने भी स्पोर्ट्स के अंदर डेवलपमेंट होते हैं, जैसे कि फिटनेस, ठीक है, एनालाइज करना किसी चीज को, गोल सेटिंग्स, ठीक है, रिस्क फैक्टर, डिसीजन मेकर, तो ये सब चीजें इंप्रूव होती हैं विद द हेल्प ऑफ स्पोर्ट्स। Sports is an extremely important component for all over development or our nation. मीन्स के हमारे ओवरऑल डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। इंडिया इन द लास्ट 5 years हैज मेड स्टडी प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, मीन्स लास्ट 5 years से बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है इंडिया की, चाहे फिटनेस लेवल पे या फिर कॉम्पिटिशन लेवल पे। This tremendous potential needs to be showcased at a global platform. It's time we inspire young talent, give them top-notch infrastructure and training of the means कि जितने भी हमारा यूथ है, यंग है, उन्हें जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर उन्हें फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं होंगी वो अच्छे लेवल पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसी वजह से खेलो इंडिया प्रोग्राम स्टार्ट किया गया कि जो ग्रास रूट लेवल पे जो हिडन टैलेंट है उसे निकाल के एक अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेशन कराया जाए और उन्हें एक इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाया जाए। खेलो इंडिया प्रोग्राम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू रिसीव द स्पोर्ट्स कल्चर इन इंडिया एट द ग्रास रूट लेवल by building a strong framework for all sports and in our country and establish India as a great sporting nation. Means के basically इसका यही रीजन है कि जब तक ग्रास रूट लेवल पे से बच्चे रेडी नहीं होंगे, तैयार नहीं करे जाएंगे, जब तक वो अच्छे लेवल पे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। To accomplish the above objectives, Khelo India program has been divided into 12 vertical, namely Objectives of खेलो इंडिया प्रोग्राम। प्ले फील्ड डेवलपमेंट, मीन्स के जब तक फील्ड प्रॉपर फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है, प्रॉपर ग्राउंड नहीं मिलेगा बच्चों को, जब तक वो अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर सकते, अपने गेम में अपने स्किल्स में इम्प्रूव नहीं कर सकते। कम्युनिटी कोचिंग डेवलपमेंट, क्योंकि जब तक कोचेज अच्छे नहीं होंगे, ठीक है,
जब तक ट्रेनर्स अच्छे नहीं होंगे, जब तक बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। स्टेट लेवल खेलो इंडिया सेंटर मीन्स के हर स्टेट में खेलो इंडिया सेंटर्स बनाए जाएंगे, जिससे स्टेट में से मैक्सिमम हिडन टैलेंट सर्च किया जा सके। एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन, जब तक एनुअल स्पोर्ट्स कंपटीशन नहीं होंगे, जब तक बच्चे को अपने इम्प्रूवमेंट की पता नहीं चलेगी और वो मोटिवेट नहीं हो पाएगा। टैलेंट सर्च एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, हिडन टैलेंट सर्च करना और डेवलपमेंट प्रोग्राम मीन्स कि वीकली या मंथली प्रोग्राम्स कराए जाएंगे, जिससे कि बच्चे के जो भी चेंजेस हो रहा है, इम्प्रूवमेंट हो रही है, उसकी पता चल सके। यूटिलाइजेशन एंड क्रिएशन अपग्रेडेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड सबको इम्प्रूव करा जाएगा और अच्छी क्वालिटी का प्रोवाइड करा जाएगा। सपोर्ट टू नेशन रीजनल स्टेट स्पोर्ट्स एकेडमिक्स मीन्स के जितने भी हमारे चाहे रीजनल देख लो, स्टेट देख लो, नेशनल लेवल पे सपोर्ट करी जाएगी, जिससे कि मैक्सिमम स्पोर्ट्स में इम्प्रूवमेंट हो। फिजिकल फिटनेस एंड स्कूल चिल्ड्रन मीन्स के स्कूल लेवल पे जो बच्चे हैं उनके फिटनेस प्रोग्राम स्टार्ट करा जाएगा, जिससे कि स्कूल लेवल पे ही फिटनेस अच्छी करी जा सके। स्पोर्ट्स फॉर वुमेन, जितने भी वुमेन्स हैं उन्हें बूस्टअप करा जाएगा, मोटिवेट करा जाएगा कि स्पोर्ट्स में मैक्सिमम पार्टिसिपेट कर सकें। प्रमोशन ऑफ स्पॉइल्स एमंग्स पीपल विथ डिसेबिलिटी मीन्स कि जिन बच्चों में डिसेबिलिटी है, ठीक है, उन्हें मोटिवेट करके उनकी डिफॉर्मिटी के डिसेबिलिटी के अकॉर्डिंग स्पोर्ट्स दिए जाएंगे, जिससे कि वो उसमें अपना करियर बना सके। स्पोर्ट्स फॉर पीस एंड डेवलपमेंट मीन्स कि जब तक स्पोर्ट्स में स्पोर्ट्स बेसिकली रूल रेगुलेशन पंचुअलिटी, ठीक है, इसी बेस पे होता है। अगर जब तक स्पोर्ट्स एक मोटिवेट होके नहीं करा जाएगा, खेला जाएगा, जब तक एक बेस्ट एफर्ट लगा के नहीं करा जाएगा, तो जब तक वो रिजल्ट नहीं दे सकते। प्रमोशन इन रूरल एंड इंडिजीनियस ट्राइबल गेम्स मीन्स के जितने भी हमारे इंडिजीनियस गेम्स हैं या रूरल में जो भी गेम खेले जाते हैं, उन्हें और अच्छे से इंट्रोड्यूस करा जाएगा, जिससे इंटरनेशनल लेवल पे वो गेम इंट्रोड्यूस हो सके। नेक्स्ट पॉइंट इज फंडिंग। Talented players identified in priority sports disciplines at various levels by the high-powered committee will be provided annual financial assistance for ₹5 lakh annual for 8 years. India school games, which are a part of Khelo India program, are first being held from 31st January to 8th February 2018. In New Delhi, under-17 athletics have been invited to participate across 60 disciplines, which are follows. Means के 31 जनवरी to 8 फरवरी 2018 में अंडर-17 एथलेटिक मीट्स हुई थी, जिसमें 16 स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन हुआ था, ठीक है। उसमें से गेम कौन कौन से हैं? आर्चरी, एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, बॉक्सिंग, फुटबॉल, जिम्नास्टिक्स, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, शूटिंग, स्विमिंग, वॉलीबॉल, वेट लिफ्टिंग एंड रेसलिंग। बेसिकली ये सारे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन हुआ था और यहीं से टैलेंट सर्च उनका कैंप लगाया गया था। कैंप लगाने के बाद उन्हें नेशनल लेवल के लिए रेडी करा गया था। बेसिकली खेलो इंडिया प्रोग्राम का यही मोटिव है कि एक ग्रास रूट लेवल पर कंपटीशन कराया जाए, ठीक है। कंपटीशन करवाने के बाद वहां से बच्चे सिलेक्ट करके उन्हें नेशनल के लिए प्रैक्टिस कराई जाए। खेलो इंडिया प्रोग्राम मीनिंग प्ले इंडिया यूथ गेम्स मीन्स के जो यूथ है, ठीक है, जो बच्चा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करना चाहता है या फिर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है, तो उसे रेडी करने के लिए या उसे तैयार करने के लिए खेलो इंडिया ने प्रोग्राम चलाया था। खेलो इंडिया प्रोग्राम मीनिंग प्ले इंडिया यूथ गेम्स हेल्ड एनुअली इन जनवरी एंड फरवरी। जनवरी और फरवरी में ये कंपटीशन होंगे। आर द नेशनल लेवल पे मल्टी डिसिप्लिनरी ग्रास रूट गेम्स इन इंडिया हेल्ड फॉर अंडर-17 मीन्स के ग्रास रूट लेवल से ये स्पोर्ट्स स्टार्ट की जाएंगे अंडर-17 स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। एवरी ईयर बेस्ट
1000 students will be given an annual scholarship of 5 lakhs for 8 years to prepare them for the international sports events. Means उन्हें 1000 को स्पॉन्सरशिप दी जाएगी 5 लाख रुपीस, ठीक है, 8 ईयर से, और उसके बाद उन्हें रेडी किया जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। अब जो फर्स्ट कंपटीशन हुआ था खेलो इंडिया प्रोग्राम का, वो 2018 में हुआ था। एवरी लास्ट इवेंट एनुअली, मीन्स के ये प्रोग्राम होगा, एनुअली कंपटीशन होंगे जिसके अंदर टैलेंट सर्च करके वो उन्हें कैंप लगा के इंटरनेशनल लेवल के लिए प्रिपेयर करेंगे। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और मेन जो मोटिव है वो ग्रास रूट लेवल से टैलेंट सर्च करना है। 2018 में जो प्रोग्राम हुआ था, जो स्पोर्ट्स इवेंट हुए थे, इन फर्स्ट खेलो इंडिया गेम्स स्मॉल स्टेट हरियाणा, जिसमें 102 मेडल उन्होंने जीते थे। इसमें 38 गोल्ड, 26 सिल्वर एंड 38 सिल्वर थे, which is considered a sports powerhouse, was the top team in 2018. 2018 की बेस्ट स्टेट मानी गई थी स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट जो सेकंड प्लेस थी महाराष्ट्र की थी, 111 मेडल इंक्लूडिंग 36 गोल्ड, एंड थर्ड प्लेस दिल्ली की थी जिसमें 96 मेडल इंक्लूडिंग 25 गोल्ड। ये 2018 के कंपटीशन का रिजल्ट था। उसके बाद 2020 में कंपटीशन नहीं हो पाए ड्यू टू कोविड। तो खेलो इंडिया का खेलो इंडिया प्रोग्राम यही था कि ग्रास रूट लेवल से बच्चों को लाना और उसके बाद उन्हें रेडी करके इंटरनेशनल लेवल पे पार्टिसिपेट कराना।